First of all, my heart broke when I saw कि हाँ actual heart ऐसा दिखता है. वो जो ड्रीम था वो हार्ट वाला, वो जो हार्ट टूट गया था, वो हार्ट टूटने के बाद सामने दिखाई देता है. हमने कभी छोटे बच्चों को कहते हुए देखा कि मैं 3 बार गिर गया, चौथी बार मैं खड़ा नहीं होऊंगा, मैं गिरा ही रहूंगा, घुटनों पे ही चलूंगा. टीचर्स एक्चुअली डोंट टीच, इट्स अ स्टूडेंट हु टेक्स थिंग्स. सर आप मैथ्स के टीचर हो, पर इस वक्त आप एक मेडिकल स्टूडेंट Yes. के मेंटर. दौर में शामिल होना जरूरी है, बिकॉज आपसे सीखते हो, यू लर्न फ्रॉम द रेस. Yeah, hi everyone. Welcome to the another episode of Being Hopeful series. So thank you so much for having both of us here. Yes. It is truly a dream come true for both of us to be on a podcast, being in front of a mic and talking to you again. Thank you so much, sir. I think it's a privilege for me right now being here. You yourself is a role model for everyone, and of course one more for me is Aishwarya. It's like a bonus for me, two great people sitting with me. It's an honor you have been here, and I was not. Sometimes you actually invite, but you don't expect the people who come around and they turn up. But thank you so much for that, for being here. So Aishwarya, people around you know that you are into AIIMS Jodhpur now, pursuing MBBS, and that is not easy. That's really hard to do the thing. But there's something in your childhood that must have been shaped you towards this future or towards this career. So what was the particular moment of your childhood? Sir, about childhood, I believe I have been very studious since childhood. मतलब छोटी Aishwarya used to study more than I do right now. Nice. And about childhood, sir, shaping मतलब my decision of taking medicine started in around 6-7 standard. It is very early, and I fortunately had a very good biology teacher. Her name is Dipali ma'am, and she used to teach us like हमें सब कुछ समझ आता था, and she used to teach it with so much of interest that got inculcated in me as well. मतलब she is one of the like it was one of the moments where you decide कि हाँ you want to take up medicine. My decision to take up medicine was because I remember we were being taught about organs in the body. Okay. जब बस शुरू होता है कि अब organ systems पढ़ाना शुरू हो रहे हैं, and I used to look those, मतलब मैं देखती थी कि अच्छा ये diagrams है, this is what the heart actually looks like. First of all, my heart broke when I saw कि हाँ actual heart ऐसा दिखता है, वैसा नहीं दिखता है. So yeah, मतलब मैं जब ये सारे organs and all देखती थी in textbooks, I always dreamt of being able to handle them in future. मतलब being able to work on them, being able to see them in reality. That was what was my dream in like around in school. So तब से, and I also used to see my father. मतलब he is also a doctor. So yes, that is also one of the factors. But हाँ, my decision to take up medicine, which I made in childhood, was because I truly loved the subject. I loved seeing all of the organs, so to say. I hope I'm not sounding like a vampire, but yeah, so nice. I love the subject. So look, what you said right now, that means it's very important that who's your mentor in whichever age you are. Yes. So that was a Dipali ma'am, if I'm correct? Dipali ma'am, yes. And I would also remember that name now, that Dipali ma'am was there, who actually put their seed into you. Yes. Otherwise, I think you might not be able to, if you're not able to visualize, you're not able to get it, so you might not be at that place. A teacher plays a very important role in you loving the subject. Okay. Yes. तो ये छोटी जो ऐश्वर्या थी वो बहुत ज्यादा पढ़ती थी, अब वाली ऐश्वर्या कम पढ़ती है. हाँ. एक ऐश्वर्या को मैं भी जानता हूँ, ऐसे 3 साल पहले वाली ऐश्वर्या को मुझे तो बहुत मेहनत करती है. तो जो नई वाली ऐश्वर्या 3 साल पहले वाली ऐश्वर्या से थोड़ा कम काम करती है, लेकिन उतना डिसिप्लिन मुझ में अभी नहीं है जितना मुझ में नीट के टाइम पे होता था. प्रिपरेशन के टाइम पे 10-12 आवर्स रोज पढ़ना, इट इज नॉट समथिंग व्हिच आई डू नाउ. आई डू स्टडी, but yes, the same discipline, the same vigor with which I worked, it is not the same. It is different. It is different. You're enjoying more now. Yes, because वो जो ड्रीम था वो हार्ट वाला, वो जो हार्ट टूट गया था, वो हार्ट टूटने के बाद सामने दिखाई देता है. Yes. And you can actually feel it or experience it. It was so surreal holding a heart. मतलब in first year we used to have anatomy classes in the dissection hall and all. It was very surreal holding the heart, all the organs, especially the heart. मैम अभी ऐश्वर्या ने तो बोली दिया, इसका ड्रीम तो 6 में डिसाइड हो गया था दीपाली मैम से मिलने के बाद. How did you felt when Aishwarya come first to you and said ki I want to be a doctor, or it was like very normal for you because husband is also a doctor? As such, I don't remember any moment as when she came and like she said or something like that.
बट थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा था कि शी वांट्स टू गो इनटू मेडिकल Medical. फील्ड एंड when she was in 10th and she was like I want to become a doctor. I think from 9th itself it shaped up and like she came up and her father was like मत बन रात को 1-1 2-2 बजे तक भी जागना पड़ता है, Yeah, it's कभी very भी tough. patient It's very आता tough. है. Yeah. It's like हम लोग उसको समझा रहे थे कि मत बंद करके. मत And बनाओ. she was like I want to become a doctor. And I think one good quality about her is she's very clear about her goals. Very much. As you said, is actually absolutely right. Because in my entire career, if I seen some student who has the clear vision कि मुझे करना क्या है, क्योंकि जनरली प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट बहुत जल्दी ना चेंज हो जाता है, फ्लिकरिंग माइंड, आई शुड डू, आई शुड नॉट डू. बिकॉज मैं ऐसे पूछता हूँ कि जब छोटा बच्चा होता है और वो चलना सीख रहा होता है तो कई बार गिरता है, बट फिर वो खड़ा होता है. हमने कभी छोटे बच्चों को कहते हुए नहीं देखा कि मैं 3 बार गिर गया, चौथी बार मैं खड़ा नहीं होऊंगा, मैं गिर ही रहूँगा, घुटनों पर ही चलूँगा. एंड समटाइम वी एक्चुअली वी मिस दैट पार्ट इन आवर लाइफ. हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम लोग चीज़ों को ना छोड़ना, गिव अप करना शुरू करते हैं. वी ऑलवेज से नहीं हो रहा है. छोटा बच्चा जब खड़ा होता है तो कभी भी ऐसा नहीं बोलता है. आई थिंक ऐश्वर्या, यू आर ब्लेस्ड, एज योर मदर से राइटली सेड, यू वेरी क्लियर. मेरे लगता है वो छोटा बच्चा ऐश्वर्या में अभी तक है. वो छोटा बच्चा कहीं गया नहीं है. शी इज दैट स्मॉल किड, छोटी ऐश्वर्या अभी तक हमारे सामने ही है. Yes, hopefully. लाइक वी ऑल नो दैट पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और मतलब मैंने तो इनफैक्ट क्लोजली मॉनिटर भी किया, आपको ऐश्वर्या के रिलेशनशिप भी देखा है. एंड आई ऑलवेज सेड दैट यू स्टैंड बाय सपोर्ट बाय साइड. मतलब एक एज अ बैकबोन यू ऑलवेज बीन देयर विद ऐश्वर्या. सो एज अ पेरेंट्स हाउ डू यू फेल व्हेन यू दिस, जब आपको महसूस हुआ कि हाँ ये मेडिकल में ही जाने वाली है, एंड व्हाट नॉट, इफ नॉट मेडिकल देन व्हाट? सर वो वैसा कुछ सोचा नहीं, बट सिर्फ ये लग रहा था कि आई नो इट्स जेंडर बायस, बट देन आई जस्ट थॉट कि वी वर लाइक शी बीइंग अ गर्ल, रात बेरात उसको उठना पड़ेगा वगैरह. बट देन वी वर हैप्पी एज वेल बिकॉज in my family itself, my husband, my sister, we have lot many doctors. हाँ, her father himself is a doctor, and we were happy. और सबसे बड़ी बात तो वो कुछ भी लेती थी ना तो उसमें हमें इसलिए खुशी मिलती थी क्योंकि उसे पता है उसे क्या करना है. और वो पीयर प्रेशर से नहीं कि भाई मेरी फ्रेंड यहाँ जा रही है तो मैं भी वहाँ चलूँ. उसे पता था उसका डायरेक्शन मुझे ये करना है. यस. हाँ. So moving ahead, like because I know when you start preparing for competition, बहुत सारे challenges आते हैं. There are lot many challenges that come forward कि syllabus को लेकर problems आती हैं, preparation को लेकर problems आती हैं, competition होता है. We feel that peer pressure कि where do I stand in all India? मेरी all India ranking क्या चल रही है? Because the competition you grade is all India competition, right? It's not easy. It's very tough competition. It's one of the best examinations or the entrances in the India to get clear into the NEET examination these days. So in that challenging phase, how did you handle yourself? Whatever pressure do you feel? Anything from your side? Sir, definitely pressure तो बहुत रहता है. Especially when you give all India test series and आप rank वगैरह देखते हो तो it is definitely a lot of pressure. But I think वो pressure पे ध्यान ना दे के अपने काम पे ध्यान दे कि हाँ मतलब अभी मेरा जो स्कोर आ रहा है मैं उसको इम्प्रूव करूँ थोड़ा धीरे धीरे करके, बस अपने काम पे ध्यान दे तो आई गेस आई थिंक वो प्रेशर उतना मतलब इट डज नॉट फील सो डॉन्टिंग इफ़ यू फोकस ऑन योर वर्क सोनली. अगर आपने काम किया है यू नो यू हैव गिवन योर बेस्ट, तो अब कुछ भी आए आपने अपना बेस्ट दिया तो मतलब यू डोंट हैव एनीथिंग टू रिग्रेट आफ्टर इट. तो दैट इज़ द थिंग कि आप अपना बेस्ट दो, आप अपना बेस्ट काम करो. प्रेशर रहेगा, यू हैव टू हैंडल प्रेशर, आगे भी प्रेशर रहेगा. आई थिंक ये 2 साल रियली टीच यू अ लॉट ऑफ रेजिलियंस मतलब टूवर्ड्स प्रेशर. आगे भी प्रेशर आने वाला है कॉलेज में, सो यू स्टार्ट लर्निंग इट फ्रॉम 11th and 12th स्टैंडर्ड कि हाँ ये तो रहेगा, प्रेशर तो रहेगा. How do you feel at the time? कभी तो स्कोर्स कम भी आते होंगे, कभी ऐसे भी लगता होगा मार्क्स बहुत कम आ गए, मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया था. हाउ डू यू हैंडल दैट? सर आई थिंक एक तो पीयर से बात करना कि तेरा कैसे रहा, ये कैसे रहा, अच्छा दिस कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड. एंड सेकेंडली टीचर से बात करना कि आई थिंक दे आर द बेस्ट मिरर. उनको बेस्ट पता होता है कि आपको किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको क्या और करना चाहिए, ये पेपर में और क्या हो सकता था. तो आई थिंक
talking to your peers and your teachers is मतलब helps you overcome the setback of having low marks ऐसे. बाकी again parents का कई बार होता है कि इस पेपर में मार्क्स Marks कम कम कैसे आए. आ गए, तो ये पेरेंट्स के साथ भी एक गुड रैपो होना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन देम कि हाँ ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, यू शुड कीप देम इन लूप. तो यस, अगर ये तीनों चीज़ें सही रही तो आई थिंक यू कैन ओवरकम द सेटबैक. Brother, you said something here कि we should talk to teachers. यस डेफिनेटली. So how would I say कि जितने भी लोग मैंने सक्सेसफुल देखे हैं उनमें, और ऐश्वर्य ऑफ कोर्स, ऐश्वर्य में एक चीज़ कॉमन है, they ready to take from teachers because teachers actually don't teach. It's a student who takes things. It's a student who learn from teacher. Teacher सबको एक जैसा पढ़ाता है. Till the time I was teaching, मैं क्लास में सबको एक जैसा पढ़ाता था. But there are certain students who want to understand, who take something from me. So it's always a student who takes learnings from teacher. ठीक है. So that's why what you said right now कि टीचर्स के पास जाओ, बात करो. I always say you should always come upfront कि मुझे नहीं हो रहा है. उन्हें बताओ कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टिंग कि हाँ कोई प्रॉब्लम है, दैट इज द बेस्ट स्टार्ट टू गो. या पहले तो कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो, उनको अपने अंदर सेफ फील होना ज़रूरी है. जब उनको लगेगा कि माई पेरेंट इज़ बाय माई साइड, डेफिनेटली दैट इज़ द, आई थिंक दैट्स द बेसिक ऑफ ह्यूमन नेचर कि आप अपने पेरेंट्स से ज़्यादा कनेक्टेड होते हो. तो जब उनको सेफ फील होगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड नॉट एवरीबडी कैन बी अ डॉक्टर और इंजीनियर और वट एवर, हर एक की लाइकिंग या हर एक की जर्नी अलग रहेगी. तो आपको वेन एवर लाइक आप बहुत सारा आजकल ना मैंने ये भी देखा है कि ओलम्पियाड्स वगैरह सब में डालना ज़रूर चाहिए. बट एक बार मैंने आपका एक मैसेज पढ़ा था कि किसी दौड़ में, हाँ आप अव्वल आओ नहीं आओ, फिर भी उस दौड़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो बड़ी बात है. तो यू हैव टू चीयर योर किड्स फॉर दैट, कि बस वो पार्ट ले. और ज़रूरी नहीं है कि हर बार फर्स्ट या सेकंड, तो एक या दो ही पर्सन आएंगे, उससे ज़्यादा तो आ नहीं सकते. तो जब आपका बच्चा आपके साथ कुछ कम्युनिकेट कर रहा है तो ट्राई टू लिसन. आई थिंक कम्युनिकेशन इन अ फैमिली इज़ मस्ट. और आपने बोला कि ड्यूरिंग दोस 5th 6th से, तो ओनली मार्क्स डोंट डिसाइड योर फ्यूचर. आई वांट टू से दैट. बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, अरे ऐसे कैसे इतने मार्क्स क्यों आए वगैरह. अरे इट्स फाइन, आप खुद का बचपन याद कीजिए, आपने 90% कब लाए थे. एज अ पेरेंट आई वुड जस्ट से कि उसे फोर्स मत कीजिए कि आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है या आपका जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन है, आपका जो पेरेंट का है, वो ही बच्चा करना चाहिए. वैसे तो आजकल बहुत जागरूकता आ गई है कि पेरेंट्स खुद ही बोलते हैं बच्चों को कि आपको जो साइड लेना है वो लीजिए या कीजिए. बट अपने बच्चे के अंदर थोड़ा सा गोल्ड देखने की कोशिश कीजिए. और नॉट ऑल द किड्स विल बी सेम. हम बहुत बार कंपैरिजन करते हैं, बट आई नो दैट दे आर ऑल आर यूनिक, each one of them. And I think that's it. You first of all you just have to show trust to them. और इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब उनको ग्राउंडेड भी रखना ज़रूरी है बच्चों को, कि उड़ रहे हैं तो उनको ये भी बताइए कि जड़ों को संभाल के रखिए. एज वेल आई जस्ट वॉन्ट टू एड वन थिंग मोर इज़ यू डेफिनेटली एज अ पेरेंट आर अ मेंटर टू दोज किड्स. बट आपकी जो विजन है ना वो इतनी है, बट अगर आपके पास में एक अच्छा दूसरा कोई मेंटर मिल जाए जिसकी उस फील्ड में एक्सपर्टाइज हासिल है, तो डेफिनेटली गो इन फॉर दैट. एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू अमित सर फॉर दैट कि वी वर लाइक व्हेन यू चोज हर. हमारे लिए तो ये सारा एक्सपीरियंस नया था सर. और एक चीज़ ना आपके बारे में इतना बोलूँगी, मतलब इट इज़ सेड कि मेंटर कैसा होना चाहिए, राइट? तो मेंटर ऐसा होना चाहिए कि उसे खुद को पहले क्लैरिटी हो, उसे खुद के अंदर वो नॉलेज हो. दैट पर्सन ही हिमसेल्फ और शी हरसेल्फ शुड हैव गॉन थ्रू ऑल दैट एंड इज़ अ लाइक
is ready to guide as well. बहुत लोगों के पास नॉलेज है बट वो देने को तैयार नहीं है. सर आप मैथ्स के टीचर हो पर इस वक्त आप एक मेडिकल स्टूडेंट से Yes. के I mentor. agree, I agree. And it doesn't feel different. So always marks or numbers or rank, it doesn't matters. End of the time doesn't matters. जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बोला कि दौड़ में शामिल होना जरूरी है बिकॉज आप से सीखते हो. यू लर्न फ्रॉम द रेस, यू लर्न फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, बट दैट इज नॉट एंड. यू लर्न वॉट एवर का आउटपुट कम्स. मैं हमेशा बोलता हूँ आउटपुट कुछ भी आएगा उसकी चिंता मत करना.